हाँ जी राजे, ये तुहाडा नैक्सट पार्ट होएगा पार्ट 2। ठीक है, जिहदे विच आपां जिहड़ा टॉपिक आ वो कवर करना है GST वाला। ठीक है, कि किस तरीके नाल आपां डबल कॉलम जिहड़ी कैश बुक आ प्रिपेयर करनी है बई किहदी हैल्प दे नाल, GST दी हैल्प दे नाल। बहुत ईजी कंसैप्ट आ। ठीक है, ध्यान नाल सुनियो, पहलां भी तुसीं ये चीज़ कीती होई, टॉपिक्स कीते होए आ, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुहानूं। बस एंट्रीज़ नूं बहुत ही ध्यान दे नाल रिकॉर्ड करना है, दैन तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो बहुत ही वधिया तरीके नाल आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, सब तो पहलां देखो सिंगल कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक दा GST दे नाल पहला टॉपिक जिहड़ा आपां क्वेश्चन दा कीता है, सम तुहाडा ये हैगा 5th। ठीक है, बुक दा 5th नूमैरिकल आ और आपां करनी है सिंगल कॉलम एंट्री विद GST। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखो तुहाडी बुक दे अकॉर्डिंग। ठीक है, सम हैगा ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਜਰਨਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਰਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਟੋਟਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇੱਧਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸਿਪਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, 50,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, 50 and 50। ठीक है, आ डेबिट और एक क्रेडिट, दो वैल्यूज़। हम आप वैल्यू लैनी है ये वाली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि आप कॉलम बना रहे हैं, इतने आप कैश अकाउंट है जो बना रहे हैं। सो आ जाएगा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किन्ने दे नाल, 50 दे नाल। ठीक है, नैक्सट एंट्री हैगी है कि उन्होंने इतने देखो परचेज गुड्स 30,000 प्लस GST एंड CGST 6% ईच कि गुड्स परचेज की। परचेज की एंट्री की आएगी, ठीक है, बहुत ही ईजी एंट्री है। आप देखते हैं नॉर्मल जो आप गुड्स परचेज करते हैं, कैश अकाउंट हो जाएगा डैबिट टोटल वैल्यू के नाल। ठीक है, परचेज अकाउंट के आ जाऊगा जो आप सॉरी एंट्री जो आप लिखांगे कैश अकाउंट है जोड़ा वो की हो जाएगा अपनी साइड इधर टू दे नाल लिखा जाऊगा। तो अपनी एंट्री है जी किस तरीके नाल लिखी जाएगी, आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST। ठीक है, टोटल वैल्यू जी भी होगी आप वो इतने कैश के अगे जाके क्रैडिट करांगे। तो देखो 30,000 तो अपनी अमाउंट आ, वो जो आप GST कैलकुलेट करांगे 6% के नाल वो 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी जर्नल की एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डैबिट अगे इनपुट CGST अकाउंट डैबिट इनपुट SGST अकाउंट डैबिट। टोटल वैल्यू अपनी की है वो आप इत्थे जो भी आप लिखांगे वो लिखांगे टू कैश अकाउंट।
पर आप हम कैश का कॉलम बना रहे हैं तो अपन पहलियां जो 3 एंट्रीज आ बाय के अकाउंट के आउणगियां, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है। नैक्सट हैगी अपनी एंट्री जो भी आप लिखांगे वो आएगी अपनी गुड्स सोल्ड। ठीक है। कॉस्टिंग 20,000 एट 10% प्रॉफिट एंड लेवाइड CGST एंड SGST एट 6%। उन्होंने क्या है कि 10% प्रॉफिट आ जोड़ा वो लेवाइन करो लगाओ। ठीक है। 10% प्रॉफिट जो आप चार्ज करांगे अपनी वैल्यू तो अमाउंट तो चार्ज करांगे तो किमें आ जाएगा 10% प्रॉफिट नूं लगाने के लिए सब तो पहला लो इत्थे 20,000। ठीक है। वो 10% करांगे कितना आ जाएगा अपना जो आप 20,000 ते 10% लगावांगे वो वैल्यू आ जाएगी अपने को 2,000। ठीक है। की आ जाऊगा 20,000 प्लस 2,000। ठीक है। कितना बन गया 22,000। हम 22,000 के उपर आप लगाना है 6% CGST और SGST टैक्स। ठीक है। वो आप इत्थे लगाना है तो यदी वैल्यू किन्नी किन्नी आ जाएगी 1320,1320। ठीक है। 1320 ये SGST और CGST का 6% का टैक्स है। ठीक है। और ये अपनी जी 10% आप प्रॉफिट आ जोड़ा वो ऐड किया 10% प्रॉफिट आप लगा के ऐड करके फिर आप उन्होंने टैक्स जोड़ा SGST और CGST का वो चार्ज करना है। ठीक है। सो ये चीज़ नूं याद रखियो कि आप प्रॉफिट इस तरीके नाल कैलकुलेट किया। दैन अपनी इत्थे एंट्री आएगी वो टू सेल अकाउंट 22,000 के नाल। ठीक है। और सेल का होने करके आप किहड़े टैक्स लगाने होंगे आउटपुट। ठीक है। आउटपुट CGST आउटपुट SGST। ठीक है। जो आप हुणे कैलकुलेट करके हटे हैं। ठीक है। सो नैक्सट अपनी एंट्री होएगी कि उन्होंने जोड़ा अंशुमन आ ठीक है अंशुमन नूं ट्रेड जोड़ा अंशुमन नूं कुछ पे की उन्होंने अमाउंट वैल्यू पे की आ वो अकाउंट के 8,000 के नाल। ठीक है। और ये किस तरीक की एंट्री है 10 दी। ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल इत्थे आप लिख लें 10 दी। ठीक है। तो ये आ जाऊगा बाय अंशुमन अकाउंट। ठीक है। पहला की लिखे से आप कि आप अंशुमन नूं पे किया एंट्री की है अंशुमन अकाउंट की हो जाऊगा। अगर आप जर्नल की एंट्री की गल करते हैं अंशुमन अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट। हाँ अंशुमन की हो जाऊगा इधर आके बाय अंशुमन अकाउंट किन्ने दे नाल 8 दे नाल। ठीक है। अगे हैगा कि उन्होंने इधरों देखो रिसीव्ड फ्राम अगे देखो टू रिसीव फ्राम सेक्शन ब्रोज 5800 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 200 कि उन्होंने कुछ अमाउंट है जी रिसीव की है 58 दी। ठीक है। आ जी एंट्री है ये सिर्फ आप जर्नल के ही पानी है ये एंट्री ना तो माइनस करना ना प्लस करना क्योंकि जो फाइनल ट्रांजैक्शन तो उन्होंने रिसीव ही इस वैल्यू के नाल हुई है। ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री अलग तो मैंशन होएगी कि उन्होंने पेमेंट है जी डिडक्ट पहला ही कर दी है। ठीक है। सो इत्थे एंट्री है जी वो सिर्फ अपनी कैश वाली आएगी क्योंकि आप कैश का कॉलम बना रहे हैं डिस्काउंट का नहीं बनाया हजे। सो इत्थे डिस्काउंट की एंट्री हजे नहीं आएगी इस सम दे विच नहीं आएगी। ठीक है। सो इत्थे कल्ला की अकाउंट होएगा अगर आप गल करिए। ठीक है। जिहड़ा पर्सन आ सक्शन ठीक है वह अकाउंट की हो जाऊगा इत्थे जो आप इत्थे गल करिए सक्शन अकाउंट जोड़े ब्रोज आ वह अकाउंट की हो जाऊगा क्रैडिट उत्थे वैल्यू एंट्री आऊगी जो आप लिखांगे क्योंकि आपां ओनू ਉਹਦੇ ਤੋਂ रिसीव की है। ठीक है। जानी कि जोड़ा परसन सीगा उन्हें आपां नूं जिहड़ी अमाउंट आ वो पे की है तो कैश अकाउंट अपना की होगा डैबिट टू सक्शन अकाउंट क्योंकि सक्शन ने वैल्यू आपां नूं पे की है। ठीक है। इस परसन ने आपां नूं वैल्यू दी है क्रैडिट की है तो आप इधर जाके भी वैल्यू की करांगे इधर टू वाली साइड लिखांगे तो ये वैल्यू की हो जूगी टू सक्शन अकाउंट 5800 के नाल की हो जूगी डैबिट। ठीक है। जो आप जर्नल के देखा तो क्रैडिट वाली साइड होगी इधर देखा तो किधर आ जूगी अपने को डैबिट वाली साइड। ठीक है। 5800 के नाल। नैक्सट अपनी एंट्री है कि लोन रिफंड टू
कुंद्रा सन, ठीक है। कुंद्रा सन सीगे जिहड़े उन्हां नूं लोन आ जिहड़े वो वापस कीते आ। इहदे विच एंट्री जिहड़ी वो इस तरीके नाल ही आएगी कि लोन अकाउंट है जिहड़े वो कुंद्रा सन ने कर दिते आ, ठीक है। आप कह दी कि रिफंड किए आ टू कुंद्रा सन, तो कुंद्रा सन की हो जाएंगे डैबिट। कुंद्रा सन नूं लोन मिलिया, ठीक है, वापस होया, रिफंडड होया, ठीक है। कुंद्रा सन नूं मिलिया जानी कि उन्हों का अकाउंट जरनल दे विच उन्हों दा अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हुण कुंद्रा सन की आ उत्थे डैबिट सीगे, इधरली साइड आके की हो जाएंगे क्रेडिट 5000 दे नाल एंट्री जिहड़ी इत्थे लिखी जाएगी, ठीक है। सो कुंद्रा अकाउंट की हो जाएगा 5000 दे नाल इधर आके क्रेडिट बाय कुंद्रा सन, ठीक है, 5000। नैक्सट हैगा पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस कि उन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस जिहड़े 3000 दे वो पे किए आ, ठीक है। ये पेड किए फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस, तो किहड़ा अकाउंट डैबिट होएगा, सॉरी क्रेडिट होएगा बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000, ठीक है। नैक्सट के जिहड़ी वैल्यू आपां पे करते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्रेडिट होएगी इधर आके कैश अकाउंट दे विच। दूसरी साइड दे विच देखिए तो जो कोई आपां अमाउंट पे करते हैं तो उधरली साइड की हुंदी है जरनल दे विच उहनूं डैबिट किया जाता है, ठीक है। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस 3000 सेम एज आपां इत्थे मैंशन करती, ठीक है। रेंट पे किया आएगा 7000 का, वो आप पे किया और नाल ही अपन रेंट के उपर उन्होंने CGST और SGST है जोड़े दिते हुए हैं। जिवें आप पहला कैलकुलेट करते हैं सेम एज आप इत्थे कैलकुलेट कर लाँगे 420 इत्थे टैक्स अपने को आ जाएगा। नैक्सट एंट्री हैगी अपने को कि उन्होंने कुछ जी स्टेशनरी मटीरियल आ, ठीक है, वो कि उन्होंने परचेज किया। एक मिनट, एक जी एंट्री 28 दी वो रह गई सी कि लोन टेकन फ्रॉम जगमोहन तो उन्होंने लोन आ जोड़ा वो लिया, ठीक है, लोन लिया तो कैश अकाउंट डैबिट होया टू जगमोहन अकाउंट, ठीक है। तो जगमोहन अकाउंट की हो गया इत्थे आपां पाया डैबिट वाली साइड किन्नी वैल्यू दे नाल 10000 दे नाल, तो ये एंट्री 28 तरीक की जिहड़ी बनेगी वो आएगी जगमोहन अकाउंट डैबिट किन्ने दे नाल 10000 दे नाल, ठीक है। सो इधर आ जाएगा। हुण आपां नैक्सट एंट्री वाली जाने आ पेड फॉर स्टेशनरी 1000 प्लस GST। हुण आपां स्टेशनरी दे लई कुछ अमाउंट है जिहड़ी पे कीती है। 1000 की चीज़ सीगी स्टेशनरी मटीरियल है जिहड़ा 1000 का सीगा, उहदे ते आपां नूं किन्ने GST पे करने 60 रुपीज़, यानी कि 6% के अकॉर्डिंग अपने 60 रुपीज़ आ जिहड़े 60 SGST ते और 60 CGST ते आपां नूं पे करने पे, ठीक है। टोटल वैल्यू आपां नूं इन्नी जिहड़ी वो पे करनी पे। हुण की करना है इस तो बाद आ वाली सारी लाइन का टोटल करना वा, ठीक है। ये टोटल बन जाएगा इन्ना 90440, ठीक है। 90440 का ये किया टेबल है जिहड़ा अपने को टोटल वो आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट की करना आ सारी वैल्यू नूं किया ये टोटल दे विचों माइनस कर देना, यानी कि ये विचों आ वाली वैल्यू नूं माइनस कर देना, लैस कर देना, तो जिहड़ी वैल्यू बचूगी वो किस तरीके नाल आ जूगी बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, ठीक है। किन्नी आ जाएगी 31,880, ठीक है। इस तरीके नाल वैल्यू जी वो आ जाएगी और ये अपना की होएगा फाइनल आंसर होएगा जो आप इत्थे कैलकुलेट करना सी। ये वैल्यू आई अपनी बाय बैलेंस कैरी डाउन दे नाम नाल, और ये वैल्यू अगे किधर चली जाऊगी नैक्सट मंथ दे विच, जिवें हुण अपना ये वाला मार्च चल रहा सीगा, ठीक है। तो अप्रैल विच चली जाऊगी, अप्रैल दी 1 तक चली जाऊगी किस दे नाल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सेम वैल्यू दे नाल, ठीक है। पिछले मंथ का बैलेंस नैक्सट मंथ दे विच ट्रांसफर हो गया ब्रॉड डाउन करके, ठीक है। ये सी तुहाडा अज दा सम, ठीक है। जे कोई प्रॉब्लम होई तुसीं पुछ सकते हो, कोई भी डाउट होया तो तुसीं क्लीयर कर सकते हो, और नैक्सट सम आ जिहड़े तुसीं सॉल्व करके चैक जरूर करायो ताकि मैं तुहानूं तुहाडीआं जिहड़े मिसटेक्स ने वो दस सकां। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।